morning, everyone. Am I audible to you? Good morning, ma'am. Morning. Wait for 5 minutes. So we have started numerical solutions of algebraic and transcendental equations in the last lecture. And today we are going to discuss about the techniques which we are going to solve for finding the roots of an equation. So यहाँ पर हमने पहले देखा था कि algebraic और transcendental equations कौन सी equations होती हैं. And algebraic means the equations in which the function f of x is purely a polynomial in terms of x, and transcendental equations means the equations that consist of other functions like trigonometric, logarithmic, and the exponential functions, like equations of these types. So today we will solve the methods, numerical techniques for finding the solution of these type of equations. So the first thing, what are the roots and the zeros of an equation? So roots are nothing but which satisfies the equation. Suppose मेरे पास कोई भी equation f of x equals to 0 है, तो वो values x की जो उस equations को satisfy करती हैं उसको हम roots या zeros बोलते हैं. Like suppose यहाँ पर मेरे पास equation है f of x equals to 0, तो इसके जो roots होंगे value of x which satisfies these equations are the roots. Now roots निकालने के जो methods होते हैं, we have a direct method for finding the roots or the numerical methods. So direct method you all know, जो अभी तक हम use करते आए हैं, in which we can get the solution within finite number of steps. Suppose मेरे पास quadratic equation है, तो quadratic equation का root you all know कि हम discriminant rule उस पे apply करते हैं and we get the roots within 2 and 3 steps. So next thing is the numerical methods, जिसमें हमें जो study करना है as per your syllabus. So first method is the bisection method. Am I audible to you? आवाज clear आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Okay. What's wrong with this? Wait a minute. Yes. Bisection method. Second one is method of false position.
false position or regular falsy method, and wait a minute, I'm going to share it again. Third is Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. So, and one more thing, graphical method is also there. तो ग्राफिकल मेथड से अगर मुझे किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना होता है तो उसमें क्या होता है, जस्ट ड्रॉ द कर्व, और जो भी कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट पॉइंट विल गिव द वैल्यू ऑफ द रूट्स. So graphical method is simple, and now we will see how to find out the roots using the bisection method. ग्राफिकल मेथड में अगर हमारे पास कोई भी दो कर्व गिवन है तो उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द रूट. नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट इज द बाइसेक्शन मेथड. A very oldest technique, the first technique, which numerical technique, which is find out the roots of an equation. So bisection method states that if a function is continuous between two real numbers a and b, and f of a and f of b are of opposite signs, then there exists one root between a and b. And this method is also known as Bolzano methods. Bolzano method. So what it states that
Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So bisection method is if a function is continuous between two real numbers a and b, and f of a and f of b are of opposite signs, then there exists one root between a and b. तो यहाँ पर अगर मैं इसको ग्राफिकली देखती हूँ तो फंक्शन हमारे पास है a और b के बीच में, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड आर ऑफ अपोजिट साइन. तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. इज इट ओके? तो सपोज ये मेरे पास फंक्शन है f of x, this is f of x, that this function is the continuous function, and f of a and f of b are of opposite sign. If I am taking this is x equals to a and this is at b, तो ये नेगेटिव साइन जो है, इट मींस f of a जो यहाँ पर है, f of a is negative, f of a is negative and f of b is of positive sign. तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, दिस इज ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस and this is negative axis. So in this condition, bisection method states that there exists at least one root between a and b. फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और f of a, f of b अपोजिट साइन का है, तो उनके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड. सो हमें यहाँ पर जब भी हम कर क्या रहे हैं, वी हैव अ होल इंटरवल और हम उसको बाइसेक्ट करके अपने रूट के नियर बाय पहुंच रहे हैं. तो सपोज मेरे पास यहाँ पर ये एग्जैक्ट है, दिस इज माय एग्जैक्ट रूट, मींस द पॉइंट एट विच द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस. यहाँ पर ले लेते हैं, take it as I here. Now because this is the numerical technique, तो numerical technique में क्या होता है, हम एक initial approximation से start करते हैं and moved towards the exact solution. तो numerical technique से roots निकालने का एक disadvantage ये भी है कि it gives only one root at a time. सारे के सारे रूट्स एक साथ प्रोवाइड नहीं होंगे न्यूमेरिकल टेक्निक से. सो सपोज आई एम स्टार्टिंग विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट. x नॉट मीन्स मैंने यहाँ पर सपोज x नॉट लिया है एंड x नॉट मीन्स a प्लस b बाई 2. इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट लिया है और अब मैं क्या चेक करूंगी, f ऑफ a मेरे पास नेगेटिव है, f ऑफ b पॉजिटिव है, x नॉट इज a प्लस b बाई 2. नाउ I'm going to find out the value of f of x naught. अगर f of x naught की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी. अगर ये पॉजिटिव आती है तो मेरे पास इस तरीके से ये चल रहा है. सबसे पहले जो पूरा इंटरवल था वो a b था. a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और b पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. अब मैंने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट लिया है which is the midpoint of a and b. Now I am going to check कि रूट मेरा अब इस वाले इंटरवल में लाई करेगा या x नॉट से b तक वाले इंटरवल में लाई करेगा. Now the bisection method states that कि if a function is continuous and f of a and f of b are of opposite signs, then there exists one root between a and b. तो यहाँ पर मैंने फंक्शन की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पर चेक करनी होगी कि f ऑफ x नॉट सपोज यहाँ पर पॉजिटिव है और या तो f ऑफ x नॉट नेगेटिव है. अगर मेरे पास f ऑफ x नॉट पॉजिटिव आता है तो जो रूट लाई करेगा वो इस वाले इंटरवल में लाई करेगा बिकॉज f ऑफ a नेगेटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. और अगर f ऑफ x नॉट मेरे पास नेगेटिव आ जाता है तो जो रूट लाई करेगा वो x नॉट और b के बीच में लाई करेगा बिकॉज द कंडीशन हियर इज f ऑफ a एंड f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइंस. मतलब कि अगर मैं उसकी प्रोडक्ट करती हूँ दैट मस्ट बी
लेस देन 0. इन द सेम वे अब अगर मुझे पता चल गया है कि मेरा रूट सपोज f ऑफ x नॉट मैंने कंसिडर कर लिया, मेरे पास पॉजिटिव आता है, तो जो मेरा रूट लाई करेगा, नाउ मेरे पास जो इंटरवल बचा है फाइनली ये वाला इंटरवल हो गया है, दिस इज x नॉट, कि इस इंटरवल में रूट लाई करेगा. अब अगेन आई एम गोइंग टू बाइसेक्ट माई इंटरवल. मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालूंगी. सपोज इट इज a प्लस x नॉट बाय 2. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू चेक कि अब जो रूट लाई करेगा वो a और x1 के बीच में लाई करेगा या x1 और x0 के बीच में लाई करेगा, डिपेंड ऑन द साइन ऑफ x1. अगर x1 पॉजिटिव आता है तो रूट इसमें लाई करेगा, और अगर x1 नेगेटिव आता है तो इसमें लाई करेगा. इन दिस वे होता क्या जा रहा है कि ये जो पूरा a और b वाला इंटरवल था, इट इज बाइसेक्टेड, कि वो हर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है. एंड वी आर गोइंग टू अप्रोचिंग द एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट रूट के नियर बाय हम अप्रोच करते जा रहे हैं इंटरवल को बाइसेक्ट करते करते. तो जितने भी हम यहाँ पर इटरेशंस करेंगे, वी विल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. तो प्रॉब्लम में क्या होगा, सपोज आपको कोई भी प्रॉब्लम हमें दे रखी है, तो वेदर इट्स गिवन कि मुझे इसमें 4 अप्रोक्सीमेशंस करने हैं या 5 अप्रोक्सीमेशन करने हैं. If it's not given in the problem, then go for 4 minimum 4 approximations. ठीक है, तो एक इंटरवल गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, और बाइसेक्शन मेथड से मुझे उसका रूट फाइंड आउट करना है. तो वही इंटरवल को हम बाइसेक्ट करते जाएंगे और वैल्यू चेक करते जाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है. इज इट क्लियर टू यू? बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें इंटरवल को बाइसेक्ट करना है. इज इट क्लियर टू यू? Hello, ma'am. Yes. Some students are saying that let them in. Sorry, I'm not getting. मैम बहुत सारे बच्चे क्लास के बाहर, उनको अंदर ले, वो बोल रहे हैं. 3 और 4 स्टूडेंट्स हैं. मैंने पहले भी बोला है कि थोड़ा सा पहले बार बार में पॉपअप होता रहता है तो वो रह जाता है. Yes. कि एटलीस्ट आप 5 मिनट्स पहले, या 5 मिनट्स नहीं तो बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन कर लो. इट ऑल्सो क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस. नाउ द ये मेथड क्लियर हुआ है, और डू आई नीड टू रिपीट अगेन? प्लीज लेट मी नो. Yes, ma'am. लेट्स सी द प्रॉब्लम कि कैसे करनी है. सिंपल फंक्शन दे रखा है मुझे. फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो इस इंटरवल पे. तो हम बोल रहे हैं बाइसेक्शन मेथड से जो रूट होगा उसके बीच में लाई करेगा. अब बाइसेक्शन मेथड है, मींस बाइसेक्ट करते जा रहे हैं हम इंटरवल को, और जैसे जैसे हमारा इंटरवल स्मॉल होता जा रहा है, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट. तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉब्लम है, सपोज एक इक्वेशन मेरे को दी हुई है. Question is, find the root of an equation root of the equation x cube minus 9x plus 1 is equals to 0 between x equals to 2 and x equals to 4 by bisection method. This is my question. So you all know that function यहाँ पर जो दे दिया है मेरे को, x cube minus 9x plus 1 equal, this is my function, and this function polynomial है, तो ये 2 और 4 के बीच में continuous होगा, because bisection method states that function must be continuous. So you see, you can write it, f of x is continuous
इन द इंटरवल, इंटरवल क्या गिवन है यहाँ पर, व्हाट्स द इंटरवल गिवन है यहाँ, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 and 4 2 से 4 के बीच में। ओके, सो फर्स्ट चेक कि रूट लाई करेगा या नहीं करेगा इसमें। तो रूट लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, जो दोनों की प्रोडक्ट है, मैंने क्या बताया, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी मस्ट बी ऑफ ऑल्टरनेट साइन, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी उनके बीच में कोई एक रूट लाई करेगा। तो मैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रही हूँ और एफ ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पर इवेल्युएट कर रही हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 हियर, कितना होगा एफ ऑफ 2, -9 and f of 4 is minus, what will be the value of f of 4, 29 पॉजिटिव आ रही है। Now you see that f of 2 and f of 4 is less than 0, ठीक है। तो अगर ये less than 0 आ जाता है, so the root will lie between, therefore root of f of x will lie between 2 and 4। अभी यहाँ पर जो चल रहा है ये पूरा इंटरवल है 2 और 4 का, ठीक है। अब क्योंकि इस पे मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई नेगेटिव और इस पर मेरे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो रूट इस इंटरवल में लाई करेगा। अब मैंने क्या करा है, बिकॉज बाइसेक्शन मेथड में मैं इसको क्या कर रही हूँ, बाइसेक्ट, एक्स नॉट की वैल्यू ले रही हूँ 2 + 4/2। दिस इज माई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो x1 लिख लो। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने क्या कर रहे हैं, इंटरवल को बाइसेक्ट कर दिया है। x1 की जो वैल्यू है इट्स 2 + 4/2, इट्स 3। तो ये जो पूरा इंटरवल था मेरा यहाँ पर बाइसेक्ट हो गया। अब मैं f of x1 इवेल्युएट करूंगी। f of x1 बताओ कि क्या आ रहा है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। f of x1 मतलब f of 3 की क्या वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 3, 1, ठीक है। मतलब कि क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है वैल्यू। तो अब रूट कहां से कहां पर लाई करेगा, ये है पूरा 2 पे मेरे पास वैल्यू है नेगेटिव, 4 पे मेरे पास है वैल्यू पॉजिटिव, 3 जो मैंने बाइसेक्ट करा था इस पे वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। नाउ वेयर द रूट विल लाई, 2 से 3 पे लाई करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। सो सिंस वी हैव f of 2 and f of 3 is less than 0, therefore फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से मेरे को पता चला है द रूट ऑफ f of x will lie between 2 and 3। Is that okay? तो अब यहाँ से 3 और 4 से हमारा कुछ ये एग्जिट है पूरे इसमें से। अब जो रूट लाई करेगा वो 2 और 3 पे लाई करेगा। सो अब इंटरवल मेरे पास हो गया है सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए 2 और 3। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रोसीजर कि मैं फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करूंगी इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, एंड देन 3 पे मुझे पता ही है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जितने भी अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे हम अपने रूट के नियर बाय पहुंचते जाएंगे। One more thing, it gives the approximate solution because these are the numerical techniques. These will not give the exact solution. ये आपको exact के nearby solution provide करेगा, and there must be some error. तो जो भी हमारे पास exact और approximate में difference होगा, that will be the error in the
method. So second approximation here is क्या evaluate कर रहे हैं अब हम यहाँ पर second approximation के लिए x2, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 3 by 2 means 2.5. तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया 2.5. Now check the value of function at x2. Is it positive or negative? Check it कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. क्या आ रहा है इसको इवेल्युएट करके? -5.875. नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव मैम. -5.875. 5.875. तो अब Yes. अब किस वाले इंटरवल में लाई करेगा? ये नेगेटिव है और इस पे हमारे पास आ गई है वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो अब कौन सा इंटरवल मेरे पास वर्क करेगा? यहाँ पे रूट किस में लाई करेगा? एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए. 2.5 से 3 2.5 एंड 3 बिकॉज यहाँ पर f of 2 नेगेटिव है, f of 2.5 भी नेगेटिव है, एंड आई एम सेइंग द रूट विल बी लाई बिटवीन द पॉइंट्स जहाँ पर f of a और f of b की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए. तो एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए. तो देयरफॉर सिंस f of 2.5 and f of 3 is less than 0, therefore from the second approximation the root of f of x will lie between 2.5 and 3. तो सेकंड आप देखते जा रहे हो, सबसे पहले जब हमने प्रॉब्लम करना स्टार्ट करा था तो मुझे ये पता था कि जो रूट लाई करेगा वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा. उसके बाद पता चला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से कि रूट लाई करेगा 2 और 3 के बीच में. सेकंड अप्रोक्सीमेशन में ये क्लियर हो गया कि रूट 2.5 से 3 के बीच में लाई करेगा. नाउ जैसे जैसे मैं अप्रोक्सीमेशंस करती जाऊंगी मेरे पास इंटरवल क्या होगा, वो स्मॉल 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 होता जाएगा और एक सिचुएशन ऐसा आएगी कि पता चलेगा रूट लाई कर रहा है 2.5 और 2.7 के बीच में, ठीक है. सो यू विल गेट द सॉल्यूशन व्हिच इज वेरी नियर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. जैसे जैसे हम इंटरवल को बाइसेक्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम रूट के नियर बाय पहुंचते जा रहे हैं यहाँ पे. बट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज इट गिव्स ओनली वन रूट एट ए टाइम. Now I am going to do the third approximation. Repeat the procedure again. यहाँ पर मेंशन नहीं है, सो हम यहाँ पे 4 या 5 अप्रोक्सीमेशन तक इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं. थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए अब जो रूट है मेरे पास इंटरवल है दैट इज 2.5 एंड 3. 2.75. यस मैम. So third approximation x3 is equals to 2.5 और 3 वाला है, ये इंटरवल चल रहा है 2.5 और 3. 2.5 पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और 3 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव. तो x3 is 2.5 plus 3/2. इसको बाइसेक्ट कर दिया है 2.75. 2.75. नाउ चेक द वैल्यू कि अब किस वाले इंटरवल में लाई करेगा. तो f of x3 means f of 2.75 and the value just minus 2.953 125. 953 means this is less than 0. इस पर जो वैल्यू आई है नेगेटिव आ गई है मेरी. तो नेगेटिव और पॉजिटिव. नाउ अगेन जो रूट लाई करेगा that will be lie between 2.75 and 3 from the third approximation. Since f of 2.75 and f of 3 is less than 0, therefore the root of f of x
lie between मैम आई थिंक ये -2.953 रॉन्ग है मैम। मेरे को सिर्फ ये बता दो कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पर ये हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ही जाएगा। नेगेटिव रहा है, कोई इशू नहीं है, आप Yes, चेक ma'am. कर लेना। अगर पॉजिटिव आता तो हमारा इंटरवल ये वाला होता, अगर नेगेटिव आ गया तो इंटरवल ये वाला हो गया। दैट इज द डिफरेंस। ओके मैम। The root of f of x lie between 2.75 and 3. Now come to the fourth approximation. अब इंटरवल जो है 2.75 और 3, तो आप देखते जा रहे हो कि कितना कम डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास रह गया है। यस मैम। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। सो x4 अब कितना हो गया हमारे पास 2.75 2.87 प्लस 3/2 which is 2.875 875 मतलब 2.88, ये पॉइंट हो गया 2.88। नाउ चेक कि 2.88 पे क्या वैल्यू आ रही है। f of 2.88 इज इट लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर लेस देन 0 होती है तो नेगेटिव आती है तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा 2.883। अगर पॉजिटिव आती है तो इसके बीच में लाई करेगा। तो इस पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। यू जस्ट चेक इट योरसेल्फ। यस मैम नेगेटिव ही आ रही है। नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, f of 2.88 और f of 3 की इज लेस देन 0। ठीक है, -3.033 root of f of x will lie between 2.88 and 3। इतना छोटा ये इंटरवल हो गया है 2.88 और 3। नाउ अगेन एक और मैं अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर कर रही हूँ, which is the last approximation, fifth approximation। and fifth approximation में आप क्या कर रहे हैं, जो इंटरवल मेरे पास यहाँ पर आया है इट्स 2.88 and 3। 2.88 पे नेगेटिव है एंड 3 पे पॉजिटिव है। तो x5 is 2.88 plus 3/2 and the value is 2.94 0.94. Evaluating the value of function at 94 and check Yes, is it positive or negative। तो अगर ये पॉजिटिव आती है तो रूट इसके और इसके बीच में लाई करेगा, अगर नेगेटिव आती है तो इसके और इसके नेगेटिव है मैम। तो इस पे अगर ये नेगेटिव है इट मींस the root will lie between 2.94 and 3। This implies f of 2.94 and f of 3 is less than 0. So root will lie between f of 2.94, sorry, 2.94 and 3. So in this way you can proceed, you can do the more approximations and find out the result which gives the which gives the solution nearby the exact one। ठीक है, तो प्रॉब्लम में जितने भी अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए आते हैं तो आप वहां तक करिए, अदरवाइज डू अप टू फोर्थ और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। So this is the bisection method, and in the next class we will do method of false position or the regular falsy method for finding the roots। This method का advantage थोड़ा सा ये है कि एक तो ये बहुत ही इसका convergence rate बहुत slow रहता है कि हमें इतने सारे approximations करते हैं तब भी हम exact तक बहुत slowly reach करते हैं। And one more thing कि अगर थोड़ी complex problem होती है, इंटरवल ज्यादा बड़ा होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट मेथड हम करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड। एनी प्रॉब्लम विद द बाइसेक्शन मेथड और द क्लियर?
मैम हमारे शेड्यूल टाइम में मैम आपके 11:30 तक क्लास है। आप कौन सी सेक्शन वाले बोल रहे हो? मैकेनिकल Mechanical. इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल वाले, आपका टाइम 10:30 to 11 है। 10 से 11 वाला स्लॉट है ना आपका? हाँ यस मैम, बट हमारे शेड्यूल में 10:30 to 11:30 1 आवर का है पूरा। वो कोई नहीं है, वो हम जैसे आगे पीछे करके करेंगे, कोई जरूरी नहीं है 1 आवर की मैं क्लास कंडक्ट करूं। इट मस्ट बी क्लियर कि जितना कर रहे हैं। ओके इसमें मैम। एक्चुअली हमने 4 सेक्शंस कंडक्ट कर रखे हैं एक साथ, टीटी एंड टीसी द सेम सेक्टर। तो उन लोगों की क्लास, किसी की ईसी वालों की क्लास शायद 11 बजे से होती है, किसी तो इस वजह से वो सारा उस पे बाइंड अप करना पड़ता है। ठीक है ना, खाली एमई की क्लास नहीं रन हो रही है। ईसी में शायद हिमांशु सर की क्लास होती है 11 बजे से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मैम हम, अभी हमारे 11 बजे क्लास है, कैन वी लीव? हाँ ओके। अभी किसकी ओके मैम, थैंक यू। 11 बजे से? तो वो एक साथ क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं सारी की सारी, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, ओके मैम। और जितना करा रहे हैं उतना आप करते जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक साथ 2-3 मेथड कराऊंगी तो आप कर पाओगे, सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप Yes. जितना कर रहे हो उतना उस पर प्रैक्टिस करते जाओ। Bisection method, if it's clear, then try to solve 2-3 problems based on the bisection method. Okay. यस मैम। Any other problem? पहले जो पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम? No. सबने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं करा है तो कर देना आज, ठीक है? तो ओके, तो सी यू नेक्स्ट Thank क्लास। you. Okay, ma'am. थैंक यू मैम। और मैंने वीडियोस भी शेयर कर दिए हैं और उसका लिंक शेयर कर दिया है। Okay, ma'am. मैम एक बार परसेंट लिस्ट भी भेज देना, एब्सेंट और परसेंट अभी मैं अटेंडेंस करूंगी। ओके ओके अटेंडेंस। मैम, एक और प्रॉब्लम है मैम। हाँ बोलो। मैम ये अटेंडेंस लगाने का टाइम फिक्स कर दो या फिर आप कहो तब लगा देंगे मैम। बार बार स्क्रीन पे सारे बच्चे। मैंने पहले भी बोला था कि मैं जब बोलूं तब, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। कुछ लोग शायद अटेंडेंस लगाने ही आते हैं, वो आते ही अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें मैं किसी मैम ड्यूरिंग ऑल लेक्चर वो प्रेजेंट ही लगाते रहते, स्क्रीन डिस्टर्ब होती है आई मैम। कांट हेल्प इट ना। ये तो आपको आपस में समझना चाहिए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ इस चीज को, लेकिन वो किसी को समझ में ही नहीं आती है और मैं उसको स्टॉप भी नहीं कर सकती हूँ।